So, hello students, I am Praveen Tripathi welcoming you in the third session of our subject Computer for the class 6. So far we have discussed about the fundamentals of computer and input devices. In the third session, in today's session, we are going to bind up our explanation part of this chapter. ठीक है, आज हमारा explanation part finish हो जाएगा इस chapter का, and then we will jump to the question answer part which I will give you and you have to do in your register. Okay, and then you will send to me. So without further delay, let's get started. So yes, we are doing our chapter first, which name is fundamentals of computer, and today is the third session, which means that it's part 3. Okay, now we have to look at which topics we are going to study today. We will study the process devices, output devices, storage devices, what are the units of computer memory, how we can find the storage capacity of our device, and then we will go to the applications of computers. Yes, so very first topic is the process device. Before understanding the process device, we have to understand what is a process. आखिर एक process होता क्या है? So the process is the manipulation of data as per given instruction. Okay, what do you mean by the manipulation? Manipulation means whatever the efforts, whatever the steps we just do. ठीक है, कुछ भी हम जो काम करते हैं, जो उसके अंदर फेर बदल करते हैं किसी भी डेटा को, उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्युपुलेशन. जैसे कि यूजर ने कंप्यूटर सिस्टम को कुछ भी डेटा दिया, तो उसका जो मैन्युपुलेशन होगा, उसके पीछे जो लॉजिक्स लगेंगे, उसको जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन होगा, वो कौन करेगा? प्रोसेस. इस स्टेप्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस. जैसे कि आपने कंप्यूटर को बोला 2+2, अब आपने तो 2+2 बोला, लेकिन जैसे ही आप =2 का साइन प्रेस करेंगे, तैसे ही वो 4 आपको दे देगा. तो ये 4 के पीछे जो मैन्युपुलेशन था, जो उसने ऐड किया 2+2 को, उससे हमने क्या बोला? प्रोसेस. ठीक है, तो ये तो बात हमने की प्रोसेस, लेकिन हमारा टॉपिक का नेम क्या है? प्रोसेस डिवाइस. आखिर प्रोसेस डिवाइस कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं, है ना? तो प्रोसेस डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का एक ही होता है, सीपीयू, which means the central processing unit. Here the P means is the processing. That means the CPU is the processing device of a computer. So why it is called the processing device? Because it stores the data, it intermediate results and control the operation of computer. Yes, so whatever the operations of computers and the data are controlled by the CPU. Okay, so now we will look to the output devices. So far we have discussed about the process devices. Now we will look to output device. First of all, we have to understand what is output. In a simple meaning, output meaning क्या होगा? Output का meaning होगा result. जैसे कि आपने 2+2 दिया, अब आप =2 का साइन करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 क्या हुआ? रिजल्ट हुआ. 4 क्या हुआ? आउटपुट हुआ. ओके, सो आउटपुट इज द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग. एक बात हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आउटपुट जो होगा वो इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद का प्रोसेस होता है. फर्स्ट we input something and then it will be processed and then the output will be generated. Okay, the devices with the help of which we get the information from computer are called the output devices. Yes, those devices who gives us information about the results. ऐसे devices जो हमें results देते हैं, जो हमें information देते हैं, will be referred as the output devices. For example, just like a monitor, printers, speakers, etc. Now we will look the output devices. तो यहाँ पर हमारा पहला आउटपुट डिवाइस वो क्या है? प्लॉटर. देखिए, प्लॉटर आप सभी ने नहीं देखे होंगे, है ना? क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि जो आप ये होर्डिंग्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, ये जो बड़े बड़े जो होर्डिंग्स पोस्टर्स होते हैं, ये कैसे प्रिंट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर. ये बहुत बड़ी मशीन होती है. जब हम इसको कमांड देते हैं तो ये बहुत से बड़े शीट्स पे या फिर पॉलिस्टर फिल्म्स पे ये ड्राइंग्स को प्रिंट करता है. ओके, द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लॉटर इज ऑफ वेरी हाई यूज्ड. ओके, आजकल बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है और ये लार्ज साइज ड्राइंग्स को पेपर या पॉलिस्टर फिल्म्स पे प्रिंट करते हैं. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा प्लॉटर. नाउ वी विल लुक द ब्रेली एम्बोसर. ब्रेली एम्बोसर का मीनिंग क्या होता है? देखो, ब्रेली एक स्क्रिप्ट होती है. ब्रेली स्क्रिप्ट एक लिखने की कला है जो कि केवल ब्लाइंड पीपल्स के लिए होती है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, बट हाउ दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई द अल्फाबेट्स और डिजिट्स और सिंबल्स. तो उस स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? ब्रेली स्क्रिप्ट. तो ब्रेली स्क्रिप्ट को भी आउटपुट करने के लिए, उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए एक हमने मशीन बना रखी है कंप्यूटर इंजीनियर्स ने,
वो आउटपुट डिवाइस है, उसका नाम क्या है, ब्रेली एम्बोसर। सो अ ब्रेली एम्बोसर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स ब्रेली प्रिंटआउट्स। यानी जो ब्रेली प्रिंटआउट्स हैं, जो ब्रेली का रिजल्ट है, वो किस पे हम देख सकते हैं, ब्रेली एम्बोसर के द्वारा। इट वर्क्स विद सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट टू ब्रेली। ओके, जो भी हम टेक्स्ट देंगे उसको ब्रेली स्क्रिप्ट के अंदर ट्रांसलेट कर देगा और प्रिंट कर देगा। Yes, now it is a very interesting output device which is the 3D printer. Here you can see in the picture, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल जो भी हार्ट है या ह्यूमन लिम्स हैं वो इन्होंने प्रिंट कर रखा है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल है बट कितना नेचुरल और कितना रियलिस्टिक दिख रहा है ना। तो अ 3D प्रिंटर इज अ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस। देखिए ये प्रिंटर तो है, आउटपुट डिवाइस तो है, आउटपुट तो दे रहा है, बट ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है, यानी कुछ ना कुछ डेवलप करने वाले डिवाइस है ये। ठीक है, ये क्या करता है, 3 डायमेंशनल यानी 3D ऑब्जेक्ट्स को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है। ओके, जैसे कि अभी जो ह्यूमन लिम्स है आर्टिफिशियल यानी बनावटी ह्यूमन लिम्स को सक्सेसफुली इम्प्लांट किया गया है। जैसे कि किसी का ह्यूमन लिम्ब खराब हो गया था तो उसकी जगह आर्टिफिशियल ह्यूमन लिम्ब को इम्प्लांट किया गया है। So this is how you can see in the picture that human limbs is printed on a 3D scale. Okay, now we will look to the storage devices. So far we have discussed about the input and output devices. Now we will understand what is the storage devices. A computer stores data and instruction for processing in its memory. देखिए हमने स्टोरेज का मीनिंग पढ़ा था कि आखिर स्टोरेज होता क्या है। स्टोरेज का मीनिंग है जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होंगे वो कहाँ होंगे, मेमोरी के अंदर। ठीक है, इट आल्सो स्टोर्स द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, वो भी इसको स्टोर करना होता है स्टोरेज डिवाइस को, है ना। तो द डिवाइसेस, अब देखिए इसकी डेफिनेशन कितनी इजी है, द डिवाइसेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर इट्स डेटा। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस जहां पर कंप्यूटर अपना डेटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। कितनी इजी डेफिनेशन है ना, आप सभी को याद हो जाएगी। वेरी गुड। अब देखिए स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम जो होता है वो कंप्यूटर की इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी यानी जो मेन मेमोरी होती है वो होती है। ठीक है, इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, यानी सीपीयू इसे डायरेक्टली एक्सेस करता है। सीपीयू के सबसे पास में कौन सी मेमोरी होगी, रैम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, स्टोर्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर पहले स्टार्ट होता है, बूट होता है, जो बहुत इनिशियल, बहुत ही शुरुआती चीजें होती है, वो कौन स्टोर करता है, रोम। तो आप सभी को स्टोरेज डिवाइसेस समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी है ये समझने में, है ना। अब देखते हैं कि रैम और रोम दिखता कैसे। देख सकते हैं आप पिक्चर में कि रैम जो एक चिप है एंड रोम भी एक चिप है। ठीक है, यस। नाउ वी विल लुक टू द कंप्यूटर्स मेमोरी। सो फार हमने समझा कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है ना, तो स्टोरेज डिवाइसेस का ही एक पार्ट है जो है कंप्यूटर की मेमोरी, है ना। कंप्यूटर इतनी सारी प्रोसेसिंग कर लेता है, सब कुछ याद कर लेता है, आखिर कैसे, इतनी फास्ट कैसे, क्योंकि वो सब कुछ स्टोर कहाँ करता है, मेमोरी में। ओके, तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं यूनिट्स की, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, वैसे यहाँ पर भी कुछ यूनिट्स हैं, कुछ मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि 8 बिट्स। बिट्स क्या होती हैं, देखो यहाँ पर तो 8 बिट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पहले समझना होगा कि आखिर 1 बिट क्या होती है। कंप्यूटर 2 ही डिजिट्स को समझता है, 0 एंड 1, तो ये क्या हुए, बिट्स। तो ये तो हुई 1 बिट्स। ऐसे ही जब हम 8 बिट्स को मिला लेंगे तब क्या बन जाएगा, 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट, 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। अब ऐसे ही करके मैंने 1024 बाइट्स को मिला दिया तो वो क्या बन गया, 1 किलोबाइट। किलोबाइट मींस केबी। देखिए आप सभी आजकल जानते होंगे कि आप सभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे मेरी इतना एमबी डेटा बचा है, इतना जीबी मेरा डेटा चला गया। आप सभी ये बात करते हैं इंटरनेट चलाते वक्त, है ना। तो ये एमबी, जीबी, केबी, टीबी आखिर है क्या, ये क्या है, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। तो अभी आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप अगली बार से केबी, एमबी, गीगाबाइट्स कुछ भी बोलेंगे तो आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 1000 केबी इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट मींस एमबी। सिमिलरली 1024 एमबी मींस द 1 गीगाबाइट, जीबी। अब ऐसे ही करके मैंने इस जीबी को 1024 कर लिया तो मेरा क्या बन जाएगा, 1 टेराबाइट। टेराबाइट मींस टीबी।
And similarly, if I just assemble the 1024 TB, then it will make the 1 petabyte means PB. And combining the 1024 PB, it will result in the 1 exabyte EB. And after that, 1024 EB means the 1 zettabyte means ZB. Okay, so this is the computer's memory. I hope आप सभी को समझ में आया होगा और आपने इसको इंटरेस्ट से पढ़ा भी होगा. Okay, so now we will find a very interesting thing. Okay, कि अभी जैसे कि आप सभी कंप्यूटर्स मान लीजिए किसी के पास हैं, किसी के पास नहीं है, तो जिनके पास कंप्यूटर्स हैं वो अपने कंप्यूटर्स की, लैपटॉप की कैसे स्टोरेज कैपेसिटी देख सकते हैं, यानी कि कितना स्टोरेज है आपके कंप्यूटर में, वो आप कैसे देख सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना. तो सबसे पहले इसकी स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि वो हम स्टेप्स कैसे करेंगे. व्हेन वी डबल क्लिक कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है, हमें डेस्कटॉप पे जो डबल क्लिक करेंगे, किस पे, कंप्यूटर आइकन पे, तो हमें एक विंडो दिखाई देगी हार्ड डिस्क की, CDEF करके, है ना. वहां पर हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक जैसे ही करेंगे वहां पर हमें एक प्रॉपर्टीज नाम का ऑप्शन दिखाई देगा. जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, वहां से मैं अपने स्टोरेज कैपेसिटी को देख सकता हूं. तो चलिए इसको करके देखते हैं. Okay, so here you can see that there is a screen which you can see on your screen. Okay, and here I will going to just click this PC. इसको आप माय कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, जैसे भी आपके ये आइकन बना होगा. ठीक है, दिस पीसी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ओके, अब ये देखिए ओपन हो चुका है. इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं अपने डिवाइसेस एंड ड्राइव्स को देख सकता हूँ. ये मेरे हार्ड डिस्क है. अब मैं इस पे क्या करूंगा, सी पे बैक क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा. ठीक है, राइट क्लिक करते ही मेरे को यहाँ पर दिख रहा है प्रॉपर्टीज. ओके, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा. अब देखिए, ये आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर यूज्ड स्पेस और फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है कि मैंने यूज कितना किया है, 59.3 GB. GB मींस गीगाबाइट्स. और अभी मेरे सी यानी जो ये हार्ड डिस्क है, इसमें कितना हार्ड ड्राइव है, इसमें कितना स्पेस बचा हुआ है, 170 GB. मींस टोटल कैपेसिटी कितनी है, 230 GB. इसमें से मैंने 59.3 GB यूज कर रखा है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट फाइंड योर स्टोरेज कैपेसिटी of your computer system. So अभी मैंने जो आपको स्टेप्स करके दिखाया है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि आप कैसे अपने कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्टोरेज कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या है. एप्लीकेशंस का मीनिंग वो नहीं है कि जो आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में लिखते हैं, है ना. एप्लीकेशंस का मीनिंग होता है यूजेस कहाँ आते हैं कंप्यूटर सिस्टम. अब मेरे को ये बात बताने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ यूज आता है कंप्यूटर सिस्टम. आई नो कि आप सभी मुझसे भी बेटर बता सकते हैं कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज आ रहे हैं. ठीक है, आजकल के जो डेज हैं, जो मॉडर्न एरा चल रहा है, उसमें तो कंप्यूटर्स are using in every aspect of life. Here I have mentioned the business, the research, education, communication, defense, transportation, etc. So business में कैसे यूज आ सकता है, बिजनेस में जो भी आपके बिल्स हैं, जो भी आपका वेबसाइट है, वो आप डिजिटली मेंटेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, प्रोडक्शंस हैं, आपके अकाउंट्स हैं, प्रोडक्शन की डिटेल है, वो सब आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, बिजनेस के थ्रू. रिसर्च माने कोई भी नई चीज हमें जो रिसर्च करनी है, वो भी हम किसका यूज लेते हैं, कंप्यूटर्स की. जैसे लेबोरेटरीज में है, रिसर्च सेंटर्स में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का. अब हम बात करते हैं एजुकेशन की. अभी आप और मैं कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, सो हियर यू कैन सी द एजुकेशन एप्लीकेशन आल्सो. ठीक है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं. फिर अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन. ईमेल भेजना, व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंसिंग करना, वीडियो कॉल करना, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है. हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू. अब हम बात करते हैं डिफेंस. डिफेंस का मीनिंग है क्या, रक्षा करना. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम एंड मिसाइल सिस्टम किससे कंट्रोल होती है, कंप्यूटर से कंट्रोल होती है. और जो डिफेंस का जो इंफॉर्मेशन है, जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन होता है, वो भी किसमें स्टोर की जा रही है, कंप्यूटर्स में. फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की. ट्रांसपोर्टेशन माने वाहन सुविधा जो भी है हमारी, तो उसमें कैसे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम यूज आ रहा है. कंप्यूटर सिस्टम देखिए, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. वापस एक बार मेरे साथ बोलिए, जीपीएस,
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, आजकल आपके स्कूल बसेस हैं या चाहे बाइक्स हो, कार हो, वहां पर जीपीएस लगा दिया जाता है जिससे आपके ट्रांसपोर्टेशन को ट्रैक किया जा सकता है। फिर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स हैं, जो आपके व्हीकल्स डिटेल्स हैं, वो भी किसके थ्रू सेव की जाती हैं, मैनिपुलेट की जाती है, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। ओके, हेल्थ केयर, बिल्कुल हेल्थ में यानी मेडिकल की जो फील्ड है उसमें भी कंप्यूटर्स बहुत ही वाइडली यूज किया जा रहा है। जैसे कि आपकी जो डायग्नोसिस की रिपोर्ट्स आती हैं वो किसमें जनरेट होकर आती है, कंप्यूटर्स में। फिर जो भी डायग्नोसिस है, ईसीजी है आपका, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, हेल्थ केयर सॉरी कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज डॉक्टर्स बहुत कर रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट, यस, ये हमारा सबसे बेस्ट पार्ट है ना, एंटरटेनमेंट। आप गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, फिर आपकी जो मूवीज आई थी ना, लायन किंग, आइस एज, ये आपके जो छोटा भीम है, डोरेमोन है, ये किसमें ग्राफिक्स डिजाइन किए गए हैं, कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, फिर पर्सनल यूज, यस, हमारे पर्सनल यूज के लिए तो बहुत ही यूजफुल है कंप्यूटर्स। हम चैटिंग करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, तो ये सब किसके थ्रू हो पाता है, कंप्यूटर्स के थ्रू। फिर अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, तो बैंकिंग में एटीएम मशीन है। अब आप में से कई बच्चे जो है वो बैंक गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि बैंक में तो हर जगह कंप्यूटर यूज आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे बताने की आई थिंक नीड ही नहीं है। कस्टमर के बैंक अकाउंट है, डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन है, ये सब किसके द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं, विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अब मैं बात करता हूँ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मीनिंग क्या होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो, ये सब क्या है, ये मल्टीमीडिया कहलाता है। तो कंप्यूटर ही है जो एनिमेशन को डिजाइन करता है, ग्राफिक्स डिजाइन करता है, साउंड की टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन का मीनिंग क्या होता है, वर्चुअल दुनिया। जैसे कि आपको 3D मूवीज आपने किसी ने देखी होगी, जो हमें ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमुलेशन। तो सिमुलेशन जो वर्चुअल 3D मॉडल है, वो भी हम किसके द्वारा अचीव कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। ओके, so that's how we have completed our chapter first, which is the fundamentals of computer. अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि आपको मैं होमवर्क भेजूंगा, आपको उसको राइट डाउन करना है अपने रजिस्टर में और मुझे सेंड करना होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट्स आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ओके, सो टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।